So, hello all. Today, I would like to invite our wonderful speaker, Dr. S. Ranjan, on our platform for today's session, Holy Gita and Soul's Journey. He will share his wisdom about Holy Gita. Before that, I would like to give a short intro about him. He is MBBS, but he is practicing and writing the book about energy medicine. His amazing master who guides and shares his wisdom about Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, and Taittiriya Upanishad. To all, he is a soul coach from Quantum Life University and the meditation teacher since last 18 years, who has taught meditation at Tihar Jail, schools and colleges, and the hospitals. I also call him as a walking library or an encyclopedia of spiritual science because he has read in depth more than 300 books. So, and still is ongoing. He always loved to do Swadhyay and shares his guidance, knowledge, wisdom to all. He also runs an online platform, the weekly discussion show with the doctors and the experts in the name of Spiritual Doctors for Holistic Health. So we would like to welcome, please give a warm welcome to Dr. S. Ranjan, and let's start today's session. Thank you so much, sir. Welcome on the session. Thank you. Thank you, Trupti Ma. Welcome, Dr. Ranjan. Please be our you. guest today and enlighten us. Thank you. Yeah. First of all, thank you, Trupti ma'am, for inviting me on your Thinking Thursday. Let's think on this Thursday. Let's think about our soul journey. Let's ponder on our nature, who we are. Although most of you are regular practitioners of some sort of spirituality, some sadhana, but let's think in terms of Bhagavad Gita, what Bhagavad Gita says in context of our nature, our real nature, consciousness, soul journey, and rest of the things. In Bhagavad Gita, there are 18 chapters, and every chapter ends with the term yoga. So Bhagavad Gita gives much emphasis on yoga. Yoga, as we know, is union. Union with self, union with higher self. If we are into spiritual practices like PLR or Akashic record or something, then we must be familiar with the higher self. These terms are there in Bhagavad Gita as well. We will see. So the first, second chapter, whenever there is a talk by Lord, by Bhagavan, then there is wisdom. When Arjuna is sharing about himself or asking some question, we can escape or we can quickly go through that sloka. So those who will try to read Gita, I will ask you to ponder more on this sloka stated by Lord. So I will take few slokas which mentions about soul journey. So the first sloka is this 2.20. Na jayate miryate va kadachi annayam bhutva bhavita va na bhuya ajo nitya shashvato ayam purano na hanyate hanyamane sarire. Although this reading is not poetic reading, but we can ponder on our nature. This is about self. This self is ajanma. It doesn't born. So the thing is, consciousness is always a consciousness. Our real nature is consciousness. What we call as birth, that is migration, transmigration in human body, in human realm, in 3D physical realm. So the higher truth
is there is no birth. It is ajanma, means there is no beginning. अगर चिंतन आए कि हम कब से शुरू होते हैं, when we started, है ना, फिजिकल बॉडी को छोड़कर, फिजिकल बॉडी तो जस्ट है फिजिकल बॉडी में इंटर कर जाना, when we started, तो फिर होगा कि जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ तब हम सब शुरू हुए, ऑल ऑफ अस। ऐसा कोई नहीं है कि तृप्ति मैम सीनियर साधक हैं तो वो पहले शुरू हो गई और हम बाद में शुरू हुए। जर्नी ऑफ एवरीवन एज ए सेल्फ और एज ए कॉन्शियसनेस, जिसके लिए फॉर कॉन्शियसनेस इन भगवत गीता टर्म्स कम्स ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज फ्रॉम उपनिषद। अहम ब्रह्मास्मि भगवत गीता में नहीं है, भगवत गीता में सेल्फ और ब्रह्म के बारे में है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, दिस सेल्फ डजंट बॉर्न, आ जन्मा, इट डजंट टेक बर्थ। तो ओशो यूज्ड इट वेरी स्मार्टली फॉर हिज समाधि। ही made disciple to write, there is no birth, there is no death. I am sure he has taken from this Bhagavad Gita 2.20. अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, ना जायते मृत्यते वा, ना जन्म है ना जायते, ना मृत्यु है, ना तो जन्म है ना मृत्यु है, ना ही कभी कोई ऐसा समय था जब ये नहीं था, ना अयम भूतवा, ना ही कोई ऐसा समय होगा जब ये नहीं होगा। इट मीन्स यू कैन नॉट एंड योर एग्जिस्टेंस। अगर कोई पर्सन सुसाइड भी करता है तो ही कैन एंड हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपकी हस्ती को मिटाने का कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, वननेस आती है बात कि हम सर्वव्यापी चेतना के साथ एकात्म महसूस करते हैं और फिर हमारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, एज ए ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारा लाइफ है, बट एग्जिस्टेंस कीप्स कंटिन्यूइंग। ये बात समझनी है। बहुत जगह पे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा आता है कि इनलाइटनमेंट इज द एंड ऑफ जर्नी। इनलाइटनमेंट इज एंड ऑफ फिजिकल जर्नी। जर्नी डजंट एंड because there is no death, there is no stoppage, na miryate. In some other form, in some other dimension, in some other way, we keep existing, we keep, existence is ever on. जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की हत्या कर देने से इसकी हत्या नहीं होती। शरीर का एग्जिस्टेंस मिटा देने से इसका एग्जिस्टेंस, सेल्फ और आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं मिटाया जा सकता। तो वी कैन पॉन्डर व्हाट इज आवर जर्नी आफ्टर डेथ। डेथ पे काफी बात है भगवत गीता में। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? अगर जर्नी कंटिन्यू है तो वी कैन पॉन्डर। पीएलआर में, एलबीएल में काफी डिस्कस आप करते ही हैं डेथ पे। और आता है यहाँ पे, तो पहले आ गया there is no birth no death. See how truth is paradox. उसी चैप्टर में आफ्टर 20 में श्लोका है, ना जायते मृत्यते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है। और तुरंत आ रही है बात, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। दिस श्लोका इज क्वाइट पॉपुलर, इवन यू कैन सी इन दिस श्लोका कुछ मूवी में भी आती है। ये मेरा इंडिया, ए गुड मूवीज देयर, उसमें भी डेथ बेड पे एक है सज्जन, उनका जो बेटा है, बेटा नहीं जिसको पाल पल्स बड़ा किया है, वो पढ़ रहा है। तो वांसांसि जीर्णानि, वस्त्र पुराने होने पर, जीर्ण मतलब होता पुराने, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। जिस प्रकार से एक नर, एक मनुष्य पुराने वस्त्र को होने पर उसे त्याग कर देता है, वैसे ही देही, ये जो देह है, शरीर देह, इसमें जो वास करने वाला है देही, वो शरीर के पुराने हो जाने पर उसको छोड़ देता है। जब हम फिजिकल रिलम में लाइफ जी रहे हैं तो वी हैव टू वर्क, वी हैव टू मूव, वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू एक्ट,
तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो व्हीकल है, वो व्हीकल जब तक यूजफुल हो तभी तक उसमें रहा जा सकता है। जब वो जो व्हीकल यूजफुल नहीं रहा, उसमें एजिंग हो गई, उसमें डिजीज हो गया, तो उस वस्त्र को, उस देह को छोड़ना पड़ता है एंड फिर से नए वस्त्र हम धारण कर लेते हैं। इस श्लोक में बस बात आई है कि छोड़ता है शरीर, देही जो है वो शरीर को छोड़ता है। आगे के श्लोक में आती है जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। फिर जब यहाँ पर जब पुनर्जन्म है तो फिर बात आएगी कि फिर क्या ये एंडलेस साइकिल है? तो ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट एंडलेस साइकिल। हम जानते हैं जब हमारी लर्निंग हो जाती है, जब हमारे कर्मा ओवर हो जाते हैं, जब हम यूनिवर्सल विल, डिवाइन विल के साथ जीना सीख लेते हैं, देन वी कैन स्टॉप दिस कार्मिक साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन। तो डेथ इज नॉट टू फियर अपॉन। डेथ के साथ जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो एक बहुत बड़ी बात हमें सीखनी है कि हम डेथ के साथ नॉर्मल हो जाएं। जिस प्रकार से हम बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ को हम जैसे देखते हैं, वैसे हम डेथ को भी देखना शुरू कर दें। एक मूवी है, भूत कॉमेडी मूवी, उसमें ऐसा आता है कि भूत भी बोलते हैं कि हमारा जो ये है ये मरने वाला है, मरने वाला है, वो उसको फिजिकल बॉडी में जा रहा है, जन्म ले रहा है। तो वो फनी मूवी है, कॉमेडी मूवी है, बट हम ऐसा देख सकते हैं कि स्पिरिट रिलम में भी ऐसा सोच सकते हैं कि अब वो हमारे बीच में एज ए स्पिरिट में नहीं रहेगा। तो जो हमारे लिए जन्म है वो स्पिरिट्स के, सोल्स के लिए, सोल रिलम में उनके लिए वो मृत्यु की तरह वो हो सकता है। वैसे उनके पास समझ होती है तो वो नहीं होता है। हम समझें मृत्यु के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है, यह साइकिल है। तो मृत्यु को हम नॉर्मल लेना सीख लें। अगर हमने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में डेथ को नॉर्मल लेना सीख लिया, दैट्स ए ग्रेट 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 अचीवमेंट। हम जो भी साधना करते हैं, जो भी ध्यान तरीका अपनाते हैं, जो भी हम अपने आप को जानना चाह रहे हैं, अगर हम अपने आप को नहीं भी जान पाते हैं, अगर, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट कहा जाता है, अगर हम डेथ के साथ भी नॉर्मल हो जाते हैं, डेथ को हम बुरा नहीं मानते। जनरली डेथ होता है, सोशली हम क्या करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं, हम सॉरी फील करते हैं। हाँ ठीक है, सोशल एक वही तरीका है, सोशल कस्टम वही है, लेकिन हम एज ए स्पिरिचुअल साधक, स्पिरिचुअल ट्रैवलर, तो हमारे बीच ये अंडरस्टैंडिंग हो कि डेथ इज अ नॉर्मल पार्ट। जब शरीर पुराना हुआ, शरीरानी जीर्णन्यानी, जब शरीर जीर्ण हुआ तो वो नया शरीर धारण करेगा, देही आत्मा। मृत्यु है, जन्म है, पुनर्जन्म है, यह श्लोक आता है। और अगला श्लोक चलने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। भगवत गीता पढ़ते हुए हमें शब्द के बारीकियों को बहुत देखना जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, कहा जाता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। थोड़ा सा कॉमा के चेंज होने से बिल्कुल सेंटेंस का मतलब बदल गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल की अभी यहाँ बात कर रहा हूं। हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ना चाहें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ कमेंट्री या ट्रांसलेशन डायरेक्ट मत देखें, पहले श्लोक को पढ़ें, श्लोक के मतलब को देखना, समझने चाहें। अगर कभी कहीं पर समझ में नहीं आता है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, वी कैन मेडिटेट, वी कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट श्लोका। चेतना के जगत में ऐसा कहा जाता है, हर चीज में चेतना है, हर पुस्तक में चेतना है, हर कंसेप्ट में चेतना है। C.W. लीडबीटर, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो अपनी एक बुक में लिखते हैं, हम किसी बुक को अगर हम उसके सेंटेंस पर मेडिटेट करते हैं, उस सेंटेंस का जो नॉलेज बॉडी होता है मेंटल प्लेन में, मेंटल वर्ल्ड में, वी कैन कनेक्ट
थ्रू दैट, थ्रू आवर मेंटल बॉडी। और मेंटल बॉडी के प्रति अगर अवेयरनेस आने लग गया है तो वी कैन कंप्रिहेंड दैट मीनिंग। तो डायरेक्ट कहने का मतलब है डायरेक्ट भी हम किसी श्लोक का मतलब मेडिटेट करते हुए हम पता लगा सकते हैं अगर हम समय देते हैं तो। धीरे धीरे चलने की जरूरत है। स्वामी शिवानंदा जिनकी फोटो आपको दिख रही है, ये अगर हिंदी में मैं इनकी कमेंट्री रिकमेंड करता हूं, और अगर इंग्लिश की बात हो तो स्वामी रामा है। हमें धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो अगला श्लोक आ रहा है 269 का, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी यस्याम जागति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। जब हम भगवत गीता की अलग अलग कमेंट्री पढ़ेंगे हमें अलग अलग मीनिंग मिलेंगे। ओशो की भगवत गीता में, क्रिया योग की ट्रेडिशन की भगवत गीता में जो मीनिंग आता है मैं उसको बोलता हूं, या निशा सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए जो रात है, तस्याम जागति संयमी, उस समय संयमी जो है वो जागता है। संयमी शब्द जो है पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, और वहां पे इसका मतलब होता है धारणा, ध्यान, समाधि। जब हम साधना में बैठते हैं, साधना करते हैं, कोई ना कोई साधना आप तो करते ही होंगे, जब कंटिन्यूअस अटेंशन इस धारणा, कंटिन्यूअस अटेंशन करते करते जब हमारे भीतर साइलेंस आ जाता है, मौन, विचारों के तल पे, जब चित्त शून्य होता है, ध्यान, और जिस भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मैं पीएसएसएम के ट्रेडिशन से हूं, बुद्धा के ट्रेडिशन से, तो वहां सांसों पर ध्यान लगाते हैं। जब अपने ऑब्जेक्ट के साथ आप एक हो जाते हैं, वननेस आज की अवस्था लग जाती है, समाधान, समाधि। प्रैक्टिकल लेवल पे धारणा, ध्यान, समाधि में क्लियर कट बाउंड्री लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए पतंजलि में आता है ये बात, इसलिए संयम, ये जो नॉर्मल हम संयम बोलते हैं सोशली, संयम रखो, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज नॉट दैट संयम। संयमी का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि को कंबाइंड बोला जा रहा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी, इसका मतलब बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग आता है। जो मेन मीनिंग है, सर्वभूतानाम, सभी जीव जब रात में जिस तरह से होते हैं, संयमी जो धारणा ध्यान का साधक है वो जागता है। दिस इज टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस स्लीप, लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल वर्क, एस्ट्रल सर्विस। जब सभी सो रहे होते हैं, जो साधक है, संयमी है, वो जागता है। क्यों जागता है? व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं जागता, यूट्यूब देखने के लिए नहीं जागता। टू वर्क ऑन एस्ट्रल प्लेन, टू सटल प्लेन, टू विजिट टू एनर्जी साइट्स। आपने बहुत सारे एनर्जी साइट सुने होंगे, आप हिमालय जा सकते हैं, आप तिब्बत जा सकते हैं, जो भी मेडिटेशन के लिए पावरफुल स्पॉट्स है वहां जा सकते हैं। यू कैन मीट सम एस्ट्रल मास्टर्स, यू कैन गेन द नॉलेज। सर्विस की जा सकती है। कोई परेशान है, दुख में है, आप उसको एस्ट्रल में जाके, उसके ड्रीम में जाकर, और बहुत बार सामने वाले व्यक्ति को नजर भी आता है कि सपना देखेगा वो आपका, इस सपने में कल मैंने आपको देखा। वास्तव में तो आपने वहां जाकर उनको कंसोल किया, उनको शांत रहने के लिए बोला। कोई दुखी है, कोई किसी बात से परेशान है, यू कैन ट्रेवल टू दैट फेलो। अगर आपका अपने एस्ट्रल बॉडी पर कंट्रोल आने लग जाता है रीजनेबल, तो इसके लिए हम पीएसएसएम में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, एक प्रैक्टिस जो हमारे पत्री जी ने कहा, सोने से पहले ध्यान करते हुए सोना है। ओपनली बात नहीं करी पत्री जी ने ज्यादा इस पॉइंट पे, लेकिन वो वही है, वी हैव टू लर्न टू मास्टर आवर एस्ट्रल बॉडी एंड अदर सटल बॉडीज। एस्ट्रल बॉडी के बाद मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागति संयमी यस्याम जागति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि। जब सभी जीव जागते हैं, जो मुनि है, जो मौन रहता है, जो चुप रहता है, विचारों से चुप, ये सिर्फ शब्दों से चुप्पी की बात नहीं है, उसको रात की तरह देखते हैं। डे टाइम इज अ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ एस्ट्रल वर्क, एस्ट्रल टाइम। पहले कोई भी चीज सूक्ष्म जगत पे आती है, हायर डायमेंशन में आती है, और उसके बाद फिर फिजिकल प्लेन पे आता है। एस्ट्रल अगर वर्क हो गया तो फिर जो दिन का है वो तो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जो लोग फैमिलियर होंगे, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी, उनकी वेबसाइट पे एक सेक्शन हुआ करता था, व्हाट इज इनलाइटनमेंट, और उसमें
एक बहुत अच्छा सेक्शन था, अब मैं नहीं देख पाता हूँ उसको। वहां पे एक एनलाइटनमेंट के कई मीनिंग थे, उसमें एक मीनिंग वो था एबिलिटी टू वर्क ऑन द सटल प्लेन एंड रियलाइजेशन दैट फिजिकल प्लेन इज रिफ्लेक्शन ऑफ सटल प्लेन। जो अब हम शरीर में आते हैं, भौतिक शरीर में, पहले हमारे कारण शरीर का निर्माण होता है, फिर कारण शरीर के अनुसार मनस शरीर होता है, और उसके बाद वैसे ग्रेजुअल है। फिजिकल इज द लास्ट, जो सबसे स्थूल है। तो हमें सूक्ष्म के प्रति जागृत होना है, वो यहाँ पर मेन प्रैक्टिकल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय में कृष्ण अपने बारे में बोलते हुए बोलते हैं कि मेरी जो प्रकृति है वो 8 अष्टधा प्रकृति है। जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें 8 कंपोनेंट है। भूमि आपः अनलः वायु ख, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये 5 एलिमेंट्स फिजिकल तल पे। फिर मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार ये सोशल अहंकार नहीं है, अहम होता है मैं। जो भी आपका मैं का आपका जो भाव है, आपका जो आकार है, जो भी आपने को आप जानते हैं कि हाँ मैं ये हूं, उसका जो आकार, वो फिजिकल सेल्फ के लेवल पे हो, वो एस्ट्रल सेल्फ के लेवल पे हो, वो और भी उससे गहरे पे हो। तो 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। जो लोअर सेल्फ, अगर लोअर सेल्फ जो है ये आते हैं। और उसके बाद फिर 7.4 के एग्जैक्ट बाद आ जाती है बात, आप परे इयम इतः तु अन्याम, इससे अलग अन्य जो हायर नेचर है, पराचेतना, परा प्रकृति, उसे तुम मुझे जानो। इन 8 के अलावा दोनों श्लोक आगे पीछे ही आता है, 7.4 और इमीडिएटली आफ्टर 7.5। जो अष्टधा प्रकृति है, 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, उससे अन्य जो अष्टधा है उसको कहा गया है आपरा। आपरा से अन्य तुम मुझे परा के रूप में जानो। पराचेतना, हायर सेल्फ इज पराचेतना। जो ये पराचेतना के बारे में कहा जा रहा है, इदम धार्यते जगत, जो फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसका जो बेसिस है वो ये पराचेतना है। यह बात हमें रियलाइज करनी है। अगर हमें यह बात समझ में आ गई तो हम फिजिकल से ज्यादा फोकस अपने हायर सेल्फ या अपने सटल एग्जिस्टेंस पे देंगे। सटल पे जो काम करना है वो सटल पे करना है, फिजिकल पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात हमें समझ में आ जाती है तो फिजिकल अपने आप, अगर आप अपने पराचेतना को महसूस कर रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, जैसी साधना होगी, जितनी सजगता होगी, उतने गहराई के तल पे महसूस कर सकते हैं, उतना बेहतर हम अपने परा के बेसिस पे अपरा अष्टधा प्रकृति को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट ऑफ द सेल्फ, उसके बारे में ये 7.4 और 7.5 बहुत अच्छा आता है। इन 2 श्लोकों पे बार बार चिंतन करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। 15वें अध्याय में एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आता है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्तथम प्राहु अव्ययम छंदाशे यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मतलब होता ऊपर, मूल जड़, ऊपर जड़ है। ये कैसी बात हो गई? हम जब दुनिया में देखते हैं कोई प्लांट तो जड़ तो नीचे होता है, लेकिन यहां पर बात आ रही है जड़ हमारा जो है वो ऊपर है। अगर हम 7.5 को हम याद रखें, पराचेतना, तो अनुभव से हम डिफरेंट स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में तो हम जानते हैं पराचेतना, हायर सेल्फ, जब भी बोलना होता है हम ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ भाव करते हैं। तो यहाँ पर बात भी आ रही है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, हमारा जो जड़ है वो ऊपर है। हमें जड़ पर काम करना चाहिए। जब भी हम काम करते हैं, किसी प्लांट में हमें पानी देना है, पानी हम पत्तों में दें या जड़ में दें? ऑब्वियस है, जो भी प्लांटेशन करते होंगे और पानी देते होंगे, पानी तो जड़ में देने की जरूरत है। तो हमारी जड़ें ऊपर हैं। हमें अपने ऊपर एग्जिस्टेंस डायमेंशन में हमारा जो कंपोनेंट है, जो सेल्फ का,
जिसके लिए पराचेतना आता है भगवत गीता में, न्यू एज में हायर सेल्फ, हमें उसके प्रति सजग होने की जरूरत अधिक है। अगर जड़ हमें महसूस हो गया, जड़ का नरिशमेंट, जड़ के हिसाब से अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो लाइफ विल बी स्मूथ, जर्नी, योर सोल जर्नी विल बी परफेक्ट। श्लोक में बात ये आती है, श्लोक का मतलब भी हम देख लें, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्तथम प्राहु हव्ययम, ये अव्यय है, ये खर्च नहीं होता, ये कभी कम नहीं होता। छंदाशी यश पर्णानी, यह तम वेद सह वेदविद, जो इसे जानता है, वेद मतलब होता है जानना, जो इसे जानता है वही वेद को जानने वाला है। 4 वेदों को आप पढ़ लें, कंठस्थ कर लें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये रियलाइज हो जाए, ऊर्ध्व मूलम, मेरी जड़ें जो हैं वो ऊपर हैं, वो वेद को जानने वाला है। तो लेट्स कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस श्लोका एंड लेट्स क्लोज आवर आईज फॉर 2-3 मिनट। हम थोड़ा सा इसको अपने साधना का आधार भी बना लें। हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, अपने पूरे शरीर को शिथिल करें, रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स करें, अपनी गर्दन को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, एंड लेट्स डाइव इन मेडिटेटिव स्टेट। आपके जीवन में ध्यान हो, मेडिटेशन हो, मेडिटेशन में एंटर करना आपको आता ही होगा। रिमेंबर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर मेडिटेशन, आपके जीवन का जो भी ध्यान का सबसे एक अच्छा खुशगवार क्षण है, उसे याद करें और मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं, शांत और शून्य हो जाए। ध्यान में बहुत बार हमें अपने नॉन फिजिकलनेस का एहसास होता है, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड आवर लिमिटेड फिजिकल सेल्फ। अपने नॉन फिजिकलनेस को फील करते हुए लेट्स कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस भगवत गीता श्लोका, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम, मेरी जड़ें कहाँ हैं? क्या ये ऊर्ध्व ऊपर है? What is the basis of my existence? Does it come from above? Try to feel. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, अपनी साधना में हम जब भी बैठते हैं, उसके अलावा भी जब भी समय मिले, जब भी आप कॉन्टेम्पलेट करना चाहें अपने एग्जिस्टेंस पे, हु एम आई, व्हाट एम आई, यू कैन कम अगेन ऑन दिस श्लोका, ऊर्ध्वमूलम, क्या मेरी जड़ें ऊपर हैं? अगर फील होना यह शुरू हो जाए हमें हमारी जड़ें, तो हमारी साधना बहुत गहरी हो जाएगी। Every meditation shall be deep meditation, because you will connect to your root, which is above, in higher dimension. In Satyaloka, in Upanishad, it comes Satyalok. This physical self, physical body, is Chaya,
is reflection of our higher existence. Let's feel our higher self, higher reality whenever possible. For now, in next 1 minute, we will return to our physical reality. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम. ऊपर जड़ है, नीचे शाखा है. शाखा के प्रति सजग हो जाएं, शरीर के प्रति. दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें और धीरे धीरे भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम. This is Gita's verse which is worthy of contemplation, of meditation. Till the time we realize fully that our existence starts from higher dimension. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम के अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आता है अध्याय 10 में. एकांसेन स्थितः जगत. भगवान अपने बारे में बोलते हुए कहते हैं कि मैंने अपने एक अंश से इस जगत को धारण किया हुआ है. भगवत गीता के बहुत सारे कमेंट्री, बहुत सारे ट्रांसलेशन भक्ति भाव से होते हैं. तो भगवान की महिमा को बताने के लिए कह दिया जाता है कि भगवान के लिए ये जो दुनिया है बस 1% है. लेकिन जब हम सोल जर्नी को प्रॉपर समझते हैं, इवन इन द वर्क ऑफ माइकल न्यूटन, देयर आर 3 to 5 बुक्स ऑफ माइकल न्यूटन, पास्ट लाइफ और LBL पर डॉक्टर ब्रायन वाइस के अलावा माइकल न्यूटन का वर्क बहुत प्रोफाउंड है. उसमें भी यह बात आती है कि इस ओवर सेल्फ का स्पार्क, छोटा स्पार्क नीचे आता है और ओवर सेल्फ जितना विकसित हो उसका उतना छोटा स्पार्क नीचे आता है. कहने का मतलब एकांसेन स्थितः जगत, अपने एक अंश से मैंने ये जगत, मैंने ये फिजिकल एग्जिस्टेंस धारण किया हुआ है. हमने भी अपनी फिजिकल बॉडी, जब हम सोल पर पूरी तरह से जाएं तो सोल, कंप्लीट सोल डजंट डिसेंड इन द फिजिकल सेल्फ, ओनली 1 to 10%. एग्जैक्ट परसेंटेज वाला डेटा कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ साथ में, तो मैं थोड़ा डेटा के लिए थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होता हूँ. बट ऐसा आता है कि इट इज पूरा सोल तो डिसेंड नहीं होता है. इसीलिए जब हम डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रोसेस में डेथ के बाद कम्युनिकेशन अगर करना होता है, आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन, अगर सोल ने रीइंकार्नेट कर लिया है तो भी उस सोल से कनेक्शन हो सकता है, उससे संवाद होता है. हायर सेल्फ, हायर एग्जिस्टेंस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. सोल डजंट डिसेंड कंप्लीटली, only by 1% or by 10% it holds the physical self, physical existence. एकांसेन स्थिते जगत. तो यह भी एक कॉन्टेम्पलेट करने का श्लोक है कि हम समझें हमारा जो कॉन्शियस सेल्फ है, फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ, और जो हमारा हायर सेल्फ है, ओवर सेल्फ. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. साधना के क्षेत्र में आगे आती है बात अद्वैत. साधना का क्या है पिनाकल, क्या एवरेस्ट क्या है? वननेस कॉन्शियसनेस. वननेस कॉन्शियसनेस के लिए भगवत गीता में कई श्लोक हैं. अध्याय 5 में, अध्याय 6 में. अध्याय 6 का श्लोक ब्यूटीफुल है. सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र शम दर्शनः. सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी भूतों में, सभी जीवों में खुद को देखना. सर्वभूतानि च आत्मनि, और खुद में सबको देखना. जो योगी, जो ऋषि ऐसा करता है वो हर जगह पे समदर्शी होता है, हर जगह पर वो एक समान रहता है.
अपनी साधना में वननेस पर भी हमें कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। आगे आते हैं तो एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं से हमें करना चाहिए। हमें अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्सटर्नल हेल्प लेने से ज्यादा हमें अपने इंटरनल सपोर्ट सिस्टम, इंटरनल रिसोर्सेस, अपने एफर्ट पर फोकस करना है, क्योंकि हम खुद ही अपना उद्धार करते हैं। और अगर हम अपना उद्धार नहीं कर रहे तो हम खुद को ही अवसाद में नीचे ले जाते हैं। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, बंधु हैं, और हम स्वयं ही अपने रिपु हैं। आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अपने लाइफ के हीरो भी हम खुद हैं और अपने लाइफ के विलेन भी हम खुद हैं। कोई विलेन बाहर नहीं है। अगर हम अपनी हेल्प नहीं करना जानते तो हम अपने निगेटिव थिंकिंग से, अपने निगेटिव बिलीफ सिस्टम से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो लर्न टू हेल्प योरसेल्फ, लर्न टू एलिवेट योरसेल्फ बाय योर ओन एफर्ट। ये बुद्धा की टीचिंग में भी आता है, ऐसे आता है, अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बने। भगवत गीता में है ये, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करें। दिस इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। हमें अपने पर्सनल एफर्ट पे अधिक विशेष फोकस रखना है, एक्सटर्नल हेल्प लीस्ट लें। हीलर और काउंसलर पर्सनल ना लें इस श्लोक को, ये साधना की बात है। एंड लास्ट श्लोका which I am going to tell today, one of the best श्लोका, हमें किस तरह से जीवन जीना है। 525, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृस्यः छिन्न कल्मषाः छिन्न द्वैधा यत आत्मनः सर्वभूत हिते रताः। जो ऋषि, वैसे ऋषि जो सभी जीवों के सर्वभूत हिते रताः, सभी जीवों के हित में रत रहते हैं, और जिनकी द्विधा छिन्न हो गई। द्विधा, ऑल कंफ्यूजन इज ओवर, ऑल डुअलिटी इज ओवर, देयर इज नो मोर डुअलिटी। वननेस के स्टेट में आ गए। अब हीरो और विलेन में अलग अलग नहीं देखते। हीरो में अधिक लाइट है, विलेन में थोड़ा कम लाइट है। विलेन से नफरत नहीं करते, डुअलिटी को ट्रांसेंड कर गए। छिन्न द्वैधा यत आत्मनः, वैसे ऋषि छिन्न कल्मषा, उनके कर्म समाप्त हो जाते हैं। नो मोर कर्मा। एंड व्हेन देयर इज नो मोर कर्मा, देन नो मोर कंपल्सरी लाइफ एंड डेथ reincarnation. Then death is life, is reincarnation is your choice. ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अगर हेल्प करना पर्पस हो अपने किसी सोल ग्रुप मेंबर को या इन जनरल ह्यूमैनिटी को, तो आ सकते हैं, बट लेकिन आना कंपल्सरी नहीं होता। सर्वभूत हिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा, वैसा ऋषि जो ऐसा करता है, सभी जीवों के हित में रत रहता है, जिसकी दुविधा छिन्न हो चुकी है, उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इनलाइटनमेंट इज ए ग्रेजुअल जर्नी, आत्मज्ञान एंड ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण इज आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन। Enlightenment and cosmic enlightenment. Brahm Nirvana is cosmic enlightenment, eternal bliss. तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वभूत हिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। हम हित में, सभी के हित में रत रहने सीखें। डेवलप एटीट्यूड ऑफ सर्विस, एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग। और हमारी लाइफ में जितना आगे ये बढ़ता जाए उतना हमारी जर्नी इजी टू ईजियर होती जाएगी। एक लंबी आध्यात्मिक जर्नी के बाद ये स्पष्ट रियलाइजेशन मेरे जीवन में है, स्पिरिचुअलिटी को या मेडिटेशन को डिफिकल्ट मानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमको अगर लगता है अध्यात्म मुश्किल है तो यह भी अपने आप में एक अज्ञान है।
अध्यात्म बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कंडीशन प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ जर्नी ऑफ साधना। अगर हम समझते हुए भगवत गीता को पढ़ते, सिर्फ कमेंट्री नहीं पढ़ते, हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। और मैंने लगभग 10 श्लोक आज आपके सामने लाकर रखे जिन पर हम बार बार चिंतन करने की जरूरत है। और उसमें यह भी सर्वभूत हिते रता, डेवलप एटीट्यूड ऑफ सर्विस, हेल्पिंग नेचर। जितना आप हेल्प करते हैं, जितना आप सर्विस करते हैं, जितना आप देते हैं, उतना इजी आपको मिलना शुरू हो जाता है। और अगर कहते हैं कि अगर भगवान देने लग जाए आपको, तो फिर तो छप्पर फाड़ कर देता है ना। तो सिर्फ अपनी साधना से आगे बढ़ना का ना सोचें, हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएं, और उसके लिए हमें सर्वभूत हिते रता का एटीट्यूड लेकर आना है। सर्विस ऑफ ऑल मैनकाइंड, सर्विस ऑफ नॉट ओनली योर कम्युनिटी, सर्विस ऑफ नॉट, अगर कोई फेमिनिस्ट है तो महिलाओं के एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स नॉट द वे। ठीक है, आप अपना मेजर टाइम उसमें दे सकते हैं, बट सर्वभूत हिते रता, सबकी हेल्प करनी है, सबको सर्व करना है। डोंट बी अटैच्ड विद योर पर्सनल कम्युनिटी। यहां मैं बिहार का हूं तो मैं बिहार के लोगों की हेल्प करूं, ठीक है, उनसे हमारी बॉन्डिंग पहले हो सकती है, जल्दी हो सकती है, तो हम पहले उस पर फोकस करें, उस पर जाएं, दैट्स ओके फॉर सम टाइम बीइंग, बट लर्न टू हेल्प एवरीवन, लर्न टू सर्व एवरीवन। यही भगवत गीता कहता है। समाप्ति होती है ओम तत्सत से, हर जगह पे भगवत गीता, जिसका मतलब होता है कि सब कुछ ब्रह्म से आता है और सब कुछ ब्रह्म में मिल जाता है। ओम तत् सत एवरीवन इंडिपेंडेंटली इंडिकेट्स ब्रह्म। तो जो भी आपके भीतर सीखने की चाह पैदा हुई, यह भी ब्रह्म से पैदा हुई है। आप भी ब्रह्म है। जो आपको कुछ समझ में आया तो वो भी ब्रह्म के कारण समझ में आया, और जो समझ आपके अंदर ट्रांसलेट हुआ वो भी ब्रह्म का ही वर्जन है। नॉलेज इज ऑल्सो ए मॉडिफाइड एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ज्ञान जो है वो भी ब्रह्म से ही आता है। जो भी आया वो ब्रह्म है, जिसमें आया वो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। जो छूट गया, जो गलती हुई, जो रह गया, वो भी ब्रह्म की मर्जी से ही छूटा रहा। तो कोई गलती नहीं मानी जाती अध्यात्म में, अगर हम ओम तत् सत कर लेते हैं तो। कहते हैं ना बिजनेसमैन बहुत सारी भूल चूक लेनी देनी, वही वैसा ही यहाँ पर है ओम तत् सत। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई शेयरिंग। एनी क्वेश्चन? वेलकम, उसका स्वागत है। एनी डिस्कशन? कोई क्वेश्चन ना भी हो, कोई डिस्कशन करना हो किसी श्लोक पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। I remember in fact reading it somewhere that if you become a channel, तो अगर आप वो पाइपलाइन बन जाते हैं जिससे सब कुछ फ्लो कर रहा है, तो आपके अंदर तो कभी कमी आती ही नहीं है। You have abundance of everything because you are the channel. Yeah. So perhaps it was reminded of that. That's perfect in one major sense. But let me remind you, let's come again in the one sloka, Ashtadha Prakriti and Parachetna. Becoming instrument is perfectly fine, but simultaneously we have to become aware of our root, Urdhva Moolam Adha Sakham. Just becoming channel is not enough. Right. That's a major part. हमारा ego sublime हो जाएगा, हम डिवाइन विल के परफेक्ट मीडियम बन जाएंगे, बट साइमल्टेनियसली सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग द सेल्फ, हु एम आई, व्हाट एम आई इज नेसेसरी। और उसके लिए 7.4 अष्टधा प्रकृति, और अष्टधा प्रकृति से अन्य परा प्रकृति, परा चेतना, उसको जानना भी जरूरी है। हु एम आई, हु एम आई बनते हुए अगर हम चैनल बनते हैं, देन दैट्स परफेक्ट, दैट्स द वे। Thank you so much. That was really enlightening. In fact, I joined when you were saying this shloka, Urdhva Moolam, and perhaps
I am feeling as if I joined this session to listen to this, and it actually, in a different way enlightened towards the same shloka. When we think that the root is above, it becomes so simple to meditate and to connect. Thank you so much. Welcome. Anyone else would like to ask questions? Please go ahead. Raise your hand. Hanji. Sarita ji. Sarita ji, please ask your question. यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू चांस देने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। प्रणाम सर। नाम सर जैसे लास्ट में एक चला कि जो हमारी हायर सेल्फ, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हमारी हायर सेल्फ का एक शेडो है। या वो थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए सर। देखिए, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं तो पहले सबसे पहले जो फिजिकल टेम्पलेट बनता है, द बेसिस ऑफ फिजिकल टेम्पलेट इज कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी सबसे पहले हर जन्म में जो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, विद एवरी डेथ फिजिकल बॉडी इज ओवर। आफ्टर फिजिकल बॉडी एस्ट्रल सेल्फ, एस्ट्रल बॉडी डिसॉल्व्स एंड देन मेंटल डिसॉल्व्स, बट द कॉजल वन इज परसिस्ट। उसमें हमारे कर्माज है ना। फिर जब नेक्स्ट बर्थ की प्लानिंग होगी तो कॉजल बॉडी के बेसिस पर, जिसके लिए यहाँ पे हम पराचेतना समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वैसे पराचेतना और कॉजल बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बेसिस पर फिर मेंटल बॉडी बनेगी जिसमें हमारा सोचने का तरीका होता है। फिर मेंटल बॉडी के बेसिस पे हमारी इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी बनती है जिसमें हमारी नाड़ियां और चक्रास हैं, और फिर हमारी नाड़ियों के अनुसार हमारा फिजिकल बॉडी बनता है। तो जो फिजिकल बॉडी में कहीं पर डिफेक्ट आते हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल चाइल्ड है, दिव्यांग, तो फिजिकल को हम देख रहे हैं मेडिकल में। लेकिन ज्यादा जब हम जब मेडिकल साइंस कॉजल बॉडी पे कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर देगा कि ऐसा क्या है जिसके कारण से ये है। अगर अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट, बॉडी में डिफेक्ट, वहां पर कोर्स करेक्शन पॉसिबल है। जब तक वो फिजिकल बर्थ नहीं हो गया तब तक कोर्स करेक्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसा सूक्ष्म है वैसा स्थूल बनता है। हम साधना में हम सूक्ष्म के प्रति सजग होना सीख लें, पराचेतना के प्रति सजग होना सीख लें, हम कॉजल बॉडी के प्रति सजग होना सीख लें, अपने कर्मों के प्रति सजग होना सीख लें, अपने कर्मों पर काम करें। हम फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी वेट को चेक करते हैं, वो भी करना चाहिए, लेकिन ज्यादा फोकस हमें अपनी पराचेतना पर, अपनी सटल बॉडीज, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी पर रखना चाहिए। अगर वहां पर अगर हमारा समय समझ में आना शुरू हो गया, इट विल बी सो इजी टू मोल्ड द फिजिकल बॉडी। जब हम संतों की जहां कहानी पढ़ें, बायोग्राफी, तो बहुत सारी ऐसे बात सुनने को आती है। शिरडी साईं बाबा, खंड योगा, अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट में अलग कर लेना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। सो मेनी पॉसिबिलिटीज विल अराइज जब हमको ये बात समझ में आने लग गई तो द रियल इज पराचेतना, कॉजल बॉडी। लेट्स लर्न टू वर्क ऑन आवर कॉजल बॉडी, सटल बॉडीज। यही स्पिरिचुअल साधना का एक उद्देश्य है। आत्मज्ञान तो है ही सेल्फ रियलाइजेशन। जब आत्मज्ञान हो जाएगा फिर तो हम बिल्कुल मुक्त हो ही जाएंगे सभी दुखों से, सभी इच्छाओं से, सभी वासनाओं से, सभी अटैचमेंट से। लेकिन उससे पहले हम अपने लाइफ को जीने का आधार सूक्ष्म बना लें। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। यस यस, कारण बॉडी को
सक्षम कर ले, उसमें जो जन्म है, कारण बॉडी में जो जन्म है, मतलब कारण है, जन्म के कारण है, उसके ऊपर काम कर। यस। Namaskar, Dr. Ranjan. First of all, my apologies. I am a beginner into all this, Bhagavad Gita and all. आपने जो बताया वो सब समझ में आया, लेकिन जो लास्ट सेंटेंस आपने बोल दिया कि हरिओम तत्सत जो है, ओम तो ये तत्सत, ओम नॉट हरिओम तत्सत, तत्सत, ओ ओम सॉरी तत्सत। ओम तत्सत, हाँ। तो क्या वो सब कुछ को नलीफाई नहीं कर देता है, जो जितनी भी आपने बातें कही उसको? नहीं, ये नलिफाई नहीं करता है, ये कोर्स करेक्शन करता है। जो भी हमने बोला उसमें जो भी भूल चूक हुई वो सब कुछ वो हमने ब्रह्म को समर्पित किया, वो ब्रह्म के इच्छानुसार, ब्रह्म के विल के अनुसार ही हुआ। जो हमें समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं भी आया तो भी वो ब्रह्म के अनुसार ही हुआ। जो भी हमने सीखा वो हम ब्रह्म को अर्पित करते हैं। एवरीथिंग इज ब्रह्म कॉन्शियसनेस, वो बात है ये। तो ओम तत्सत बोल के कोर्स करेक्शन किया जाता है कि जो भी छूटा, जो भी घटा बढ़ा रहा, वो चूंकि सब कुछ ब्रह्म है, सो इट्स ओके। थैंक यू। ये नलिफाई नहीं करता, ये कोर्स करेक्ट करता है। ओके ओके, थैंक यू। Anyone else? कोई और है जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? Please go ahead. Yeah, I want to ask. My name is Vaidehi. Thank you so much. It was very enlightening. I want to know which book would you suggest for this Bhagavad Gita, which is really, deep, and it gives you. If you can look my background, I am I showing. saw, but I'm not able to make it out. I want to. I saw them. Yes, I saw one is Swami Rama. Rama. Okay. One is Swami Rama in English. Yes. Okay. In English, I prefer Swami Rama, and then Yogananda, Paramahansa Yogananda. Yogananda. Okay. Okay. That is two versions are good in English, and in Hindi, first one is Swami Shivananda, क्योंकि उनके में शब्दार्थ जो संधि विच्छेद में, मैंने बहुत सारे श्लोकों में मैंने संधि विच्छेद आपको बोले हैं। अब जैसे है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम ना जायते म्रियते वा, ये तो खैर 7.5। हाँ जी। अपरा प्रकृति से अन्य, जो अन्य पर है वो परा चेतना है। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ऊपर जो है, ऊपर ये लगातार वाला वर्जन है जो मेन होता है, अपरे मित स्वान्यम प्रकृति विद्धि में पराम। तो अब इसी को जब संधि विच्छेद में लिखा गया तब आया अपरा इयम इतः तु अन्याम। वो समझना इजी हो गया, इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। यस यस यस। वो शिवानंद गीता में है, वो सब जगह नहीं। इस कारण से शिवानंद गीता जो है वो रिकमेंडेड है। और शिवानंद गीता के बाद फिर हम ओशो को पढ़ सकते हैं, ओशो का, लेकिन ओशो काफी बड़ा है बहुत। आई थिंक इट्स गॉट अबाउट 10 वॉल्यूम्स और समथिंग। 8 वॉल्यूम, 108 और 110 डिस्कोर्स आर देयर। लेकिन एक ओशो के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इनका ऑडियो अवेलेबल है। Without paying any penny, you can listen all discourse in free. Just osoworld.com पे ऑडियो सारे अवेलेबल हैं। YouTube पे जाते नहीं, YouTube पे बहुत I know. I am subscribed to that also. Yes, yes. फ्री अवेलेबल है, कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। osoworld.com पे वो डिस्कोर्स अवेलेबल है। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप शेयर कर रहा हूँ, उसमें लिंक मिल जाएगा। ओके। फर्स्ट गो थ्रू शिवानंदा, और फिर जहां पे जरूरत लगे, खासकर जैसे इस श्लोक में 269 में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी, इसका इस श्लोक की व्याख्या जब ओशो में आप एक बार पढ़ लेंगे, जो मुझे याद है मैंने 11th में जब मैं था तब मैंने पढ़ा था, और ये श्लोक सबसे ज्यादा मेरे जेहन में बिल्कुल प्रिंट हो गया, एकदम ऐसा कि लाइक एनीथिंग। भगवत गीता का ये श्लोक मुझे सबसे ज्यादा इनिशियल डेज में अट्रैक्ट करता था। अब तो ऊर्ध्वमूलम और सर्वभूत हितेरता, ये 2 श्लोक सबसे ज्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूं कि सभी को चिंतन करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, जीवन उतारना चाहिए। ऊर्ध्वमूलम, हम क्या हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है और हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। सर्वभूत हितेरता। थैंक यू सो मच। मेरे डेली सेशंस होते हैं,
डेली मैं भगवत गीता में बोलता हूँ। मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं जो करते रहते हैं। हर दिन 8 बजे मॉर्निंग 8 AM मैं उन बातों को गीता पर आराम आराम से एक दिन में 1 श्लोक 2 श्लोक ऐसा डिस्कशन करता हूँ धीरे धीरे। क्योंकि गीता को प्रॉपर समझने में अगर गीता को एक बार उठाए तो फिर लगभग 1 साल समय तो चाहिए इसको पूरी तरह से समझने के लिए। अगर हम पूरी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप है? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप है ये हाँ, जिसमें आप टेलीग्राम करते हैं? टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम को। ओके, Yeah, so we will put the Thank you so much. details. We will share the details on the groups. So you will get Okay. all the details, okay? Thank you so much. Thank you so much. Yeah. And someone was asking that, will this talk that Dr. Saab has given, will it come on YouTube? Yeah. So in the night, once the recording is downloaded, it will be shared on the YouTube channel. So if you missed the talk or you want to hear it again, you can always hear it again, okay? And share it, of course. Sharing is caring, right? So please Yeah, keep sure. sharing. Yeah, share all the wonderful speakers that we have here. Unke sab talks hai on YouTube. Please go, please share and let people, you know, learn more and more. I think that's more important for all of us. So Dr. Ranjan, thank you so much. It was wonderful, enlightening. एंड उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे और ज्ञान के मोती बांटते रहेंगे. दैट्स इम्पोर्टेंट. इट्स आवर फर्स्ट इंटरेक्शन तृप्ति मैम, बट आपकी खबरें तो सुनते ही रहते हैं, तो एक आपका मैं फैन हूँ. आपकी वर्क्स का डिफरेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग मौके पर मिलते रहे हैं. जी जी जी, थैंक यू सो मच. इन सबका प्यार ही है कि this group has been on for the last nearly 2.5-3 years. Thinking Thursday Zoom platform हमारा चलता रहा है, and it's all thanks to the group members really, क्योंकि group members हमें information देते रहते हैं speakers की, and we keep inviting them. तो मैं तो कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ. Group के members have actually sustained the group. So I always thank everybody. ये आप लोगों की वजह से ही ये प्लेटफॉर्म चलता रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आप जैसे और स्पीकर्स आप भी हमें सजेस्ट करिए. डॉक्टर रंजन, वंडरफुल स्पीकर्स इन डिफरेंट फील्ड्स. जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअल फील्ड से लोग हो. वी हैव पीपल फ्रॉम फाइनेंस दैट कम फ्रॉम, अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, बिकॉज इंसान को इस पृथ्वी पे जीने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है, बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत है. तो मुझे लगता है कि सभी तरह के लोग किसी न किसी प्रकार से हमारे होते हैं गुरु. तो आई वुड डेफिनेटली प्लीज डू सजेस्ट समबडी who you think can contribute. So I'll be most happy with that. So everybody, is it okay? Can we end today's class? Yes, ma'am. And thank you so much, sir, Thank you, to accept the Tejal. Yes, ma'am. Thank you. invitation. And ma'am, definitely, I'm sure sir also will like you to, you know, give your presence in one of our session. Yeah. Regarding, she is the best, like, you know, we call her as our Guru Ma for the past life regression therapy, and she's amazing, one of the best in India. So would like to have, you know, called on her. Anytime, most welcome. Thank you so much, sir. Thank you for enlightening. coming. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye, Thank you, everybody. ma'am. Thank you, sir. God Bye. bless, Thank and you, sir. happy, Thank you so much. Thank you, and a Tejal. happy New Year to Happy New Year everybody. to Thank you, ma'am. everyone. Happy New Happy Year. New Year, ma'am. Happy New Year to you Wonderful all. New Year. नया साल Bye-bye. बहुत बहुत Happy मुबारक New हो. Year to all of you. हैप्पी न्यू ईयर सबको. Bye. Thank you, sir. So see you all in the new year. Okay. Yes, doc. Bye. Bye. Bye bye. ग्रेट.